प्यार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के माले पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और जिसके बाद मालदीव यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज सुबह हवाई अड्डे पर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और ये राष्ट्रपति की ओर से एक बहुत ही विशेष भाव भंगिमा थी और साथ ही प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उनका स्वागत किया गया। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद के बीच समिति और प्रतिनिधिमंडल के स्तर की वार्ता भी हुई और इसमें दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों की समीक्षा का अवसर मिला। वहीं उन्होंने कहा कि हमने मालदीव्स को 4,850 करोड़ रुपए की नई ऋण सीमा प्रदान करने से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये मालदीव्स की दी गई पहली भारतीय रुपए में दी गई ऋण सीमा है और ये ऋण सीमा मालदीव्स के विकास आवश्यकताओं के लिए सहायता की परंपरा को आगे बढ़ाती है और हमें उम्मीद है कि इस ऋण सीमा को समझौते के परिणाम स्वरूप कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं संचालित होंगी, जिससे मालदीव्स के नागरिकों को लाभ होगा। On arrival at the airport, the Prime Minister was warmly received by President Dr. Muiz and members of his cabinet at the airport. This was a very special gesture by the President. The Prime Minister was also accorded a ceremonial guard of honor and welcomed with a special cultural performance. In the afternoon today, the Prime Minister and President Dr. Muiz held restricted and delegation level talks. This gave both leaders the opportunity to review the entire gamut of issues in the bilateral relationship. They renewed various aspects of India-Maldives relations and in particular reflected on the progress made since October 2024 when President Dr. Muiz had visited India on a state visit and when both countries had adopted the joint vision for an India-Maldives comprehensive economic and maritime security partnership. We have signed an MOU related to the extension of a fresh line of credit of 4,850 crore rupees to the Maldives. This is the first LOC extended to the Maldives that is denominated in Indian rupees. The LOC represents a continuation of the tradition of assistance to the development needs of the Maldives, and we expect that several infrastructure projects will be carried out as a result of this LOC agreement, benefiting the lives of citizens here in the Maldives. Together with this, the two sides also signed an amendatory agreement that amended the existing dollar line of credit between India and the Maldives, and I would like to in particular point to the fact that with the signature of this amendatory agreement, the annual debt repayment obligations of the Maldives will reduce by a sharp 40% from nearly $51 million annually to about $29 million. The other
understandings signed today include an MOU on cooperation in the field of fisheries and aquaculture, an MOU between the Indian Institute of Tropical Meteorology of the Ministry of Earth Sciences and the Maldives Meteorological Services in the Ministry of Tourism and Environment, an MOU on cooperation in the field of sharing successful digital solutions that have been implemented at population scale for digital transformation between the Ministry of Electronics and IT of India and the Ministry of Homeland Security and Technology of the Maldives. There was also an MOU on the recognition of Indian pharmacopoeia in the Maldives, which will reinforce the availability and sourcing of high quality medicines in the Maldives, and a network-to-network agreement between India's NPCIL, the National Payments Corporation of India International Limited, and the Maldives Monetary Authority. This is intended to take forward the work on implementing the unified payments interface that will greatly benefit tourism between the two countries. In addition to that, there were a number of announcements and events that took place during the course of the day. The two countries have agreed to launch negotiations on an India-Maldives free trade agreement. On the occasion of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations, the two sides issued commemorative stamps. The Prime Minister also handed over 3,300 social housing units in Hulu Male that were built under the Indian Buyers Credit Scheme. The two leaders also together inaugurated the roads and drainage system project in Adu City, 6 high-impact community development projects, and just now, a short while ago, the Ministry of Defence building in Male. चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के दौरे पर हैं और इस मौके पर हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो ये है वो जगह जहां पे कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोजो जी के साथ यहाँ पे अभी बैठक शुरू होगी खासतौर से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा है ये, खासतौर से लंदन से वो सीधे यहाँ पहुंचे हैं। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में अक्सर ये कहा जाता है कि वो देश के बाहर रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं जब वो देश के बाहर रहते हैं तो देश के प्रति जो भावना यहाँ के लोगों में और खासतौर से यहाँ की सरकार में होता है वो अपने आप में अद्भुत है। हम आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन अभी हमें सुरक्षा कारणों से हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मालदीव्स के राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं और खासतौर उसके कुछ ही देर बाद प्रेस स्टेटमेंट होगा जिसको हम आपको अपने लगातार अपने बुलेटिन के माध्यम से जानकारी देंगे। ब्यूरो हेड सपना चारण के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, माल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि देने जा रहे हैं। वे उन्नाव जनपद में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश परिसर का उद्घाटन करेंगे। और ये विश्वविद्यालय लखनऊ कानपुर राजमार्ग से स्थापित किया गया और तकनीकी रोजगारोन्मुखी और वैश्विक स्तर पर शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 6 वर्षों में ऐसा सकारात्मक विश्वासपूर्ण वातावरण बना है जिससे देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थान अब उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का आगमन इसी का प्रमाण है। उन्होंने कहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के भारत में यूनिवर्सिटी में शामिल है और साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित किए जाएंगे। छात्र की वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार
दक्ष बनेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है और ऐसे में 25 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक तारीख जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4078 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं और इस आंकड़े के साथ उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया और जिनका कार्यकाल 4077 दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व केवल शासन नहीं, ये एक विचार, एक दर्शन और एक परिवर्तन की धारा है जिसने भारत को नई सोच, नई दिशा और नया आत्मविश्वास दिया। एक ऐसा नेता जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास को जीवन मंत्र बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे पर हैं और इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे को लेकर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोगों से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मालदीव के माले आइलैंड पे इस समय हम मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां मालदीव में पहुंचेंगे और कई एमओयूज पे साइन होंगे, यहाँ के राष्ट्रपति से मिलेंगे और कई बायलैटरल्स मीटिंग होंगी। इस समय हम यहाँ पर आइलैंड पे मौजूद हैं। ये माले आइलैंड है जिस पर आप देख सकते हो ये बोट है जो स्पेशली मीडिया के लिए यहाँ पे अरेंज की गई है, जिसके थ्रू हम लोग दूसरे आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होना है। आपको बता दें ये दूसरा आइलैंड है जहाँ पर हमारा मीडिया सेंटर है और वो दूसरा आइलैंड है जिस पर हम अभी जाने वाले हैं। इन बोट्स के थ्रू यहाँ पर ये बोट्स खड़े हैं और हम वो दूसरे आइलैंड पे पहुंचेंगे और वहां पर भी आपको पल पल के अपडेट्स देंगे प्रधानमंत्री जी के इस 2 दिवसीय दौरे के बारे में। तो कुरुम्बा रिसोर्ट पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, मालदीव में हम हैं। प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा है। यहाँ पर काफी लोग जो यहाँ पर मालदीव में रहते हैं, इंडियंस हैं, वो यहाँ मौजूद हैं मोदी जी का स्वागत करने के लिए। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मोदी जी पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आज प्रधानमंत्री जी का टूर है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ रहते हुए? Very excited. This is my once in a lifetime experience and I'm going to see our Prime Minister in person. So very, very happy about it. आप मालदीव में क्या करते हैं? So I head the operations for Billabong International High School. We have 3 schools here that I take care of. ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है जो आज कुछ एमओयू साइन होंगे प्रधानमंत्री जी का, जैसे वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक इमेज बनाया है और मालदीव्स के साथ भी हमारा बीच में थोड़ा सा रिश्ता गड़बड़ा हुआ था बट अभी वापस से अच्छा हो गया। यहाँ के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी को खुद पर्सनली जाके इनवाइट किया, अब वो यहाँ आ रहे हैं आज, तो उस पर आपका क्या कहना है? See, diplomatic, relationship that Modi has been, in terms of, the way he has been interacting with all the countries, has been at an all-time high, So, वो बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, is what I personally feel that, once Modi is over here, there's a lot of development for Maldives also is planned, is what I feel. So, the investment part, in terms of the relationship building, it's only Modi who can do it, So, I'm very happy, that he's coming over here and, signing a lot of deal, between the Indian government and the Maldives government. So I look forward, to a prosperous Maldives, in a prosperous Maldives also. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने के लिए। एक्सक्यूज मी,
आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के टूर पे यहाँ मौजूद है, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है? पहले सबसे पहले तो आपका नाम। मेरा नाम तुषार है, मैं यहाँ पर 8 सालों से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन अ टेलीकॉम कंपनी हियर। इट्स गुड टू मीट अ प्राइम मिनिस्टर हु इज एनर्जेटिक एंड हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर रिलेशनशिप अक्रॉस द रीजन। सो वी वेलकम इट विद ओपन हार्ट्स एंड माइंड्स हियर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो आई एम श्योर दैट विल वर्क वंस ही इज हियर। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपसे पहले तो आपका नाम। मेरा नाम कंचन है और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। हम लोग यहाँ पे 27 साल से है। 27 साल से हैं, तो आपको क्या लगता है 27 साल पहले और अब में क्या डिफरेंस है इंडिया की इमेज को लेकर, और इंडियंस को कैसा, मतलब शुरू से यहाँ पर किस तरह से रहा और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से? यहाँ पे हमें तो टचवुड इतने सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग भी बहुत फ्रेंडली है, वी हैव गुड रिलेशंस विद देम। हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो वी हैव बीन हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग। ओनली थिंग इज अभी रिसेंटली थोड़ा वो डॉलर्स का शॉर्टेज हो रहा था, तो वी आर होपिंग दैट विद दैट जो अभी MVR INR का चल रहा है, तो दैट वुड बी सॉर्टेड आउट सून एंड देन इट वुड बी गुड। अभी आप एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री जी? यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो कुरुम्बा आइलैंड पर इस समय हम मौजूद हैं, मालदीव्स में। यहाँ पर देख सकते हैं लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। इन लोगों में काफी जोश है। मैं चाहूंगी एक बार अपना जोश कैमरा पर आप लोग दिखाएं। भारत माता की जय। थोड़ा जोश से बोलिए। भारत माता की जय। तो आप लोग यहीं पर रहते हैं इसी मालदीव्स आइलैंड पर? we are staying here, yeah. आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, he is coming for that here, so that is also we are happy for that. This is a very beautiful country for in the entire world. So after 4-5 years, then he came back here. This is very happy to us to see him as well. You know, there are huge operations they already done. So once he is here, then economically they might be get some opportunity be in Maldives. We are expecting those things. So once the developing here also, we peoples are here as India also going to be high. That's the way I are expecting those things. That's all. आपका क्या नाम है? Shankar Murthy. आप कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के इस टूर के बारे में? We are very excited to visit to meet Mr. Narendra Modi ji. आप एक्साइटेड हैं, तो देख सकते हैं आप लोगों में एक्साइटमेंट है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे देश में नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की वही पॉपुलैरिटी बनी हुई है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक छोटा सा बच्चा है, आपको उससे मिलवाएंगे। एक्सक्यूज मी, आपने एक फोटो बनाया है प्रधानमंत्री जी के, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मिर्दुल साय। अच्छा, तो आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? I don't speak Hindi fluently. Do you speak English? You are going to meet Mr. Modi today? Are you excited? Yeah, I'm very excited. There's a high chance of a really big event happening here in this island at all, whatever you like to call it. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आप देख सकते हैं छोटे बच्चों में भी यहाँ एक्साइटमेंट है और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के आगमन से पहले ही तैयारियां जोरों पर थी और इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे के आगमन को लेकर रुचि नेहरा ने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव्स पहुंच रहे हैं। ये यात्रा बहुत खास है। मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी यहां चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। इस यात्रा में मालदीव्स और भारत के कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें से एक मुख्य विषय है समुद्री सुरक्षा।
भारत और मालदीव्स वैसे तो सालों से पड़ोसी रहे हैं, बट मैं समझती हूँ अच्छे दोस्त भी हैं। देखते हैं ये दोस्ती कहां तक जाएगी और किन किन विषयों पर चर्चा मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे पर है, जहां पीएम मोदी का रिजॉर्ट पहुंचने पर छात्रों के एक समूह ने पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चलिए रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दिन की यात्रा पर मालदीव्स पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय काफी उत्साहित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर है। शुक्रवार को मालदीव्स पहुंच चुके हैं और ऐसे में कुटुंबा रिजोर्ट में उनके आने पर भारतीय प्रवासियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कुटुंबा रिजोर्ट में ही ठहरेंगे और साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से मालदीव्स के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव्स दौरे के दौरान वो माले पहुंच चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी रिजॉर्ट पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने वंदे भारत, भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कुटुंबा रिजॉर्ट में ही ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव्स की राजधानी माले पहुंच चुके हैं और ऐसे में हवाई अड्डे पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान मालदीव्स के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी पीएम मोदी की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे और हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का सांस्कृतिक नृत्य के साथ अभिनंदन और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें मालदीव्स की, जहां पर राजधानी माले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार। साल के आखिरी महीनों में बिहार में विधानसभा